کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستو، آؤ ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن پڑھتے ہیں، چلو ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ قرآن میں کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو، تو سمجھا رہی ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے، سن قرآن۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلی مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ کوئی مائی کا لال کیا ہے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں لکھ چاہ بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، میں نے کہا اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لو گن لو یا شمار کر لو۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لو اللہ پہ، ایک ہے اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ، ایمان لو میرے رسول پہ۔ اللہ ایک، رسول دو، رسول کے آگے تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے بہترین طریقے سے تمہیں سمجھایا ہے، اللہ نے اپنا بھی نام لیا، اپنے رسول کا بھی نام لیا، لیکن تیسری وہ ہستی جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے اس کا نام نہیں دیتا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، نبی کے بعد والنور الذی انزلنا۔ چلو پھر دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل نہ کریں عمل۔ اچھا اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ، اور نوجوان میری طرف دیکھنا، لا الہ، پھر بولو بھائی لا الہ۔ آگے ہے ورسولہ، اللہ فرماتا ہے جیسے مجھے مانے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑھے گا؟ محمد رسول اللہ۔ سنا دنیا والوں، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے۔ جب آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی تو ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکا۔ تم نہ مانو علی کو ہمارے لیے رہنے دو، قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو۔ آیت رک جاتی، ایمان یہاں رک جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے چل 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 محمد کے آگے بھی چل، اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا۔ رکھا ان کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون؟ تمہیں پتا ہے اللہ کیوں کہتا ہے تین ہستیوں کو مانو؟ اس لیے فرماتا ہے کہ قرآن میں تین بیماری ہیں۔ کتنی بیماری ہیں؟ چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ کتنی بیماری ہیں؟ بولو کتنی بیماری ہیں؟ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بیماریاں ہیں کیا؟ میری طرف دیکھنا، آپ کو بیماریوں کا علم نہیں نا کہ بیماریاں کیا ہیں۔ لکھو، پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ قرآن سے دیکھتے ہیں شرک کا علاج کیا ہے، یا نبی پاک سے پوچھتے ہیں شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں نفاق منافقت کا علاج کیا ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔ سمجھ آئے نا؟ سمجھ آگے کہ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا۔ قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم۔ اے بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے سے منافق کا علاج کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، منافق مشرک سے بھی بدتر ہے۔
मुनाफिक काफिर से भी बदतर है। क्यों बदतर है? मुशरिक से बंदा बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है। काफिर से भी बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है। मुनाफिक से नहीं बच सकता। क्यों? मुनाफिक बैठता ही मोमिनों के अंदर है। मोमिन की वर्दी और मुनाफिक की वर्दी एक होती है। मोमिन ने काले कपड़े पहने हैं ना, तो मुनाफिक भी पहन के तुम्हारे साथ बैठ जाए, फिर कैसे पहचानोगे? मुनाफिक पता कैसा होता है? जैसे तोता होता है। ये तोता तुमने देखा? तोता, मैं बाग वाले तोते की बात कर रहा हूँ। ये तोता मुनाफिक है। तोता पता क्यों मुनाफिक है? कि तोता जब बाग में बैठा हो तो चुप से नुकसान करता रहते, नजर नहीं आता। क्यों? इसकी वर्दी ऐसी है जैसा बाग है। मुनाफिक तोता जब भी हमला करता है दरख्त पे नहीं करता, फल पे करता है। इसका पता नहीं चलता, चुप से नुकसान करता रहता है। कब पता चलता? जब मालिक बाग का मालिक बाग में आता है, चाहे वो पटास चलाए या बंदूक चलाए। पटास चली या बंदूक चलने की आवाज इस मुनाफिक तोते के कान में आई, उसे समझ आ गया अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब बाग का मालिक आ गया। फर्क सिर्फ इतना है, उस मुनाफिक तोते का तो पता चला ना पटास से या बंदूक की आवाज से। अगर तुमने अपने अंदर यहाँ देखना हो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई तोता नहीं बैठा है, और तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा जिसके कपड़े ऊपर से काले हो, अंदर से दुश्मन अली हो, तो फिर उसका पता पटास से नहीं चलेगा, उसका पता बंदूक की आवाज से नहीं चलेगा। तो फिर लिख लो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, समाज से लेके जनूब तक, और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, अब्दुल वहाब रब्बी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। लेकिन तुम्हारी सहासत तक की जिम्मेदार किताब सही तिरमिज़ी राविया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो, मुझे यही खड़े करके सरेआम फांसी पे लटकाओ। अतबर सुनो, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नहनु कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिअहद रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं रसूल के वक्त में हमने देखना होता बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, उसके सामने अली का नाम ले। समझ आई? ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का, और अलीयुन वलीउल्लाह इलाज है मुनाफिक का। वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। उन रखना इनके सर पे करार, पूछ वो नूर है कौन? सर मौलवी चलाकी करेगा, डंडी मारेगा, लेकिन तेरी डंडी वहां चलेगी जहां कारी सहाबत ना हो। अब तो पूछोगे ना ये नूर कौन है, कहेगा ये नूर अली नहीं। अच्छा बता कौन है? कहेगा ये नूर कुरान है। ये नूर, चलो हमें कोई इतराज नहीं, आप कुरान को ही नूर मान लें, लेकिन फिर अपना ईमान और कलमा तो कुरान के मुताबिक पूरा करो। समझ आई ना? तुम क्या तो ये नूर कुरान है तो इसकी तरतीब यूं बनेगी, फामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे, सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अब रसूल ही मान लो मेरे रसूल पे, सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, मान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो तुम क्या तो ये नूर कुरान है, फिर आगे कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह। तुम नस्ली शिया में फसली शिया। मैं तुमसे सवाल करने लगो, ये कुरान जब नाज़िल हुआ था तो नबी पाक की उम्र कितनी थी? और 40 साल। आओ कुरान पढ़ लेते हैं। अगर कुरान में अल्लाह के ना उस नूर को मानो जिसको मैंने नबी की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान ही कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, वैसे भी नूर कुरान है ही नहीं। मैं डायरेक्ट आयत कुरान से पढ़ देता हूँ, सूरह निसा से पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता हमारी तरफ से तुम्हारे पास दो चीजें आई हैं, एक कुरान है, दूसरा चमकता हुआ नूर आया। तुम समझा कि कुरान और है वो नूर। पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन अल्लाह फरमाता है फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबअ नूरल्लज़ी उनज़िला माहु। अल्लाह फरमाता है बस वो लोग जो ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, फिर मेरे नबी की इज्जत की, व नसरूहु, फिर मेरे नबी की मदद की, व तबअ नूरल्लज़ी उनज़िला माहु, उस नूर की ताबेदारी की। उस नूर को माना किसको? उनज़िला माहु, जिस नूर को ऐ मोहम्मद मैंने तेरे साथ नाज़िल किया। क्या मकसद है? जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां वो नूर। अगर मोहम्मद कलमे में, वो नूर भी कलमे में। अल्लाह कहता है उस नूर को मानो जिसको मैंने नबी के साथ नाज़िल किया। उन पूछे नूर किसका नूर है? इसी नूर को समझने के लिए ना, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, मौलवी उस वक्त में नहीं था, उस वक्त स्कूल में मैंने किताब पढ़ी थी जिसका नाम है तज़किरातुल वाइज़ीन। ये अहले सुन्नत की लिखी किताब है। इसी किताब ने मुझे मौलवी बनने का शौक डाला था। ये वो किताब है जिससे मेरा भाई जुमे की तकरीर याद करके फिर जुमा पढ़ाता है। इस किताब के अंदर लिखा है कि इसी नूर को समझने के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूलल्लाह जरा ये तो बताओ कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को खलक किया था? नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं जाबिर सुन अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलक किया।
जाबर कहते हैं या रसूल अल्लाह सबसे पहले खलक तो किया, लेकिन खलक कहाँ से किया? नबी फरमाते हैं मिन नूरे ही, अपने नूर में से। जाबर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं जाबर मेरे नूर को खलक करके अल्लाह ने मेरे नूर को पेशानी आदम में रखा। तो अब समझ आई कि वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा नूर मुस्तफा को था। जाबर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं जाबर सुन, पेशानी आदम से मेरा नूर पेशानी नूह में आया, पेशानी नूह से मेरा नूर पेशानी इब्राहिम में आया, पेशानी इब्राहिम से मेरा नूर पेशानी इस्माइल में आया। फरमाते हैं जाबर सुन, पाक सुल्बों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ मेरा नूर जब मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में पहुंचा, वहां मेरे नूर के दो टुकड़े हुए, वहां मेरे नूर के दो हिस्से हुए। वफी सुल्बे अब्दुल्ला वजूद फी सुल्बे अबू तालिब, एक मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुलम में, दूसरा मेरे नूर का हिस्सा मेरे चाचा अबू तालिब के सुलम में। फरमाते हैं जाबर सुन, जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुलम में आया, उस नूर से अल्लाह ने मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे चाचा अबू तालिब के सुलम में आया, उस नूर से अल्लाह ने मेरे भाई अली को वलीउल्लाह बनाया। किसी ट्रैक्टर पे अली का नाम लिखा हो, ट्रैक्टर पे, कहते ट्रैक्टर ही शियों का, कार पे अली तो कार शियों की, मस्जिद पहली तो मस्जिद ही शियों की, बारगाह पहली तो बारगाह शियों का, मकान पहली तो मकान शियों का। असल में ना वो तुम्हें कुछ समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। वो समझा ये रहा है कि शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं, शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं। शियों का अगर कुछ है तो अली की वजह से। कार पहली तो कार शियों की, मस्जिद पहली मस्जिद शियों की, बारगाह पहली बारगाह शियों का, मकान पहली मकान शियों का। तो फिर माफ कर देना, अगर काबे में अली, कार पहली तो कार शियों की, मस्जिद पहली मस्जिद शियों की, बारगाह पहली बारगाह शियों का, मकान पहली मकान शियों का, काबे में अली काबा शियों का। माफ कर देना अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया, के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया, तो फिर क्या करो? और सुनो, मैंने इंटरनेट पे भी कहा है, तुम्हारे सामने भी कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में ना मैं किसी जाकर का जिम्मेदार हूं, न किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूं, लेकिन अपने पूरे मदबे शिया का जिम्मेदार हूं। लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून चल रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदबे शिया को गलत साबित करके चला जाए। अगर आपको जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया, फिर क्या करोगे? तो फिर दो तुम्हारी किताबें गवाह है, एक क्या फराइदी सुनते अल्लामा हुमैदी की लिखी अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, दूसरी मक्तल खारदमी, दोनों मेरे अहले सुन्नत भाइयों के आलिम है। दोनों ने किताबों में लिखा है कि जब रसूल मेराज से वापस आए, सहाबा कराम ने बड़ा नबी पाक का इस्तकबाल किया। नबी पाक के सहाबा बहुत अच्छे थे, नबी पाक की तज़ीम करते थे, सहाबा जितने थे सारे ही अच्छे थे। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सैर की है? फरमाया हाँ मैंने की है। कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर आपने जन्नत को भी देखा होगा? फरमाया हाँ देखा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा है? नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं किस दरवाजे की बात करते हो? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के 7 हैं और जन्नत के 8 हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह जो जन्नत का मेन गेट है ना, बड़ा दरवाजा, उस पे क्या लिखा है? पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरे साहबियों जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उन तमाम दरवाजों पर 3 सतरें नूर की लिखी है। बोलो हाँ कितनी सतरें? फिर बोलो कितनी सतरें? नूर की लिखी है। नूर से बात शुरू की है ना, नूर पे खत्म हो रही है। 3 सतरें नूर की लिखी है। साहबा का हमने कहा या रसूल अल्लाह वो सतरें हैं क्या? नबी फरमाता है सुनो, सतरे अव्वल है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सतरे दूम है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सतरे सोम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली